اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صوفی سرگم، جس میں دل سے کی جاتی ہیں دل کی باتیں اور سچے دلوں کے ساتھ، اور میں آپ کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، گاؤں شہر، ہر جگہ پہ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب زندگی کا شور تھم جاتا ہے تو دل ایک نئے سفر کی طلب کرتا ہے۔ میں 65 سال کا بوڑھا، ہاتھ میں لاٹھی کی بجائے اپنا موبائل یعنی کیمرہ لیے، دل میں تجسس اور چہرے پر مسکراہٹ لیے چنیوٹ کی پرانی گلیوں میں گھوم رہا ہوں۔ یہ گلیاں صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنی، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ وقت کی کتاب کے وہ ورق ہیں جو صدیوں کی کہانی بیان کر رہے ہیں، جن پر صدیوں کے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر بوسیدہ عمارت، ہر لکڑی کا دروازہ، ہر محراب اور جھروکا کچھ نہ کچھ کہتا ہے، بس سننے والا دل چاہیے۔ سفر صرف جوانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ دل کے زندہ رہنے کی علامت ہے۔ میں جب ان پرانی عمارتوں کا دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے ماضی کے لمحات پھر سانس لینے لگے ہوں۔ یہ چہل قدمی میری دوا ہے، میرا سکون ہے، میرا تنہائی کا توڑ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ گلی گلی گھوموں مستی میں جھوموں، دنیا کی خوب کر سیر۔ جی، یہ ہے وہ میرا جذبہ جو چنیوٹ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے مجھے مستی دلا رہا تھا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہے کہ قُلْ سَيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، یعنی زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کی ابتدا کس طرح کی۔ یقین مانیے یہ آیت میرے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر اللہ خود ہمیں زمین پر سیر و سیاحت کا حکم دے رہا ہے تو پھر یہ گھومنا پھرنا صرف وقت گزاری نہیں بلکہ غور و فکر اور شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔ چنیوٹ میں نے جتنی بھی عمارتیں دیکھی تو ان پر زیادہ تر اردو لکھی ہوئی تھی، فارسی لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی بنائی گئی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگز ہیں، یہ جو بڑے بڑے پرانی حویلیاں ہیں، یہ چنیوٹی شیخوں کا کمال ہے۔ چنیوٹ کے پرانے دور میں چنیوٹی شیخ جو ہیں وہ بڑی مطلب ایک اہمیت رکھتے تھے، نہ صرف تجارت بلکہ تعمیرات کے میدان میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر، چونا، لکڑی اور محنت سے وہ عمارتیں بنائیں جنہیں دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے شیخ خاندان مغل دور میں دہلی، لاہور اور شجاع آباد تک گئے، جہاں انہوں نے نقش و نگار اور ووڈ کرونگ اور سنگ تراشی کے فن کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ چنیوٹ کے کاریگروں نے لاہور کے شالیمار باغ، شاہی قلعہ اور حتیٰ کہ دہلی کے لال قلعے کے اندرونی حصوں میں بھی کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چنیوٹ کی جب ہم پرانی عمارتیں دیکھتے ہیں تو یہ مغلیائی رنگ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ جیسا کہ عمر حیات محل، یہ بھی ایک چنیوٹ کا بہت ہی شاہکار تعمیراتی نمونہ ہے، اور میں اس پر ایک ولاگ پہلے بھی بنا چکا ہوا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شاہی مسجد چنیوٹ، یہ بھی مغلیہ دور میں تعمیر ہونے والی مسجد اپنے سنگ تراش کام، نقاشی اور عربی خطاطی کی وجہ سے مشہور ہے، اس پر بھی میں ایک ولاگ بنا چکا ہوں۔ اسی طرح چنیوٹ کی قدیم حویلیاں شہر کے اندرونی حصے میں موجود ہیں۔ یہ شیخ خاندانوں کی حویلیاں ہیں، اور آج وہ شیخ بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے برانڈز کے مالک ہیں، کیونکہ یہ کاروباری لوگ تھے اور انہوں نے اب بھی کاروبار میں بہت نام کمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آ گئے، اور اسپیشلی یہ بچہ مجھے انسٹرکٹ کر رہا ہے، یہ بنائیں یہ بنائیں یہ بنائیں، اور کہتا ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ویڈیو بنانے۔ جی بیٹا، آپ چنیوٹ کا نعرہ، چنیوٹ زندہ باد۔ یہ بلڈنگ جٹ محل کہلاتی تھی، اور میں اس کے اندر بھی گیا سیڑھیاں چڑھ کے۔ اس میں بہت سارے خاندان آباد ہیں۔
यहाँ काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत ही ये दिलचस्प गुफ्तगू मुझसे करने लग गए और इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत लोग आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं। चलिए, आज कोई नहीं आया, आज मैं तो आ गया हूँ ना। पीछे होते जाए, पीछे पे चलते जाए। हाँ, आंटी का नाम क्या है? सूफी सरगम। सूफी सरगम, सूफी सरगम। सूफी सलजम नहीं। मेरी हंसी निकल गई। वो बच्चा सूफी सरगम को सूफी शलजम कह रहा था। शायद उसे मेरी शक्ल शलजम जैसी नजर आई थी। यहाँ मुझे एक पुरानी बात भी याद आ गई कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा था तो मेरी भांजी कॉलेज से आई रिक्शे में और उसने अपनी सहेली को बताया कि वो मेरे मामू खड़े हैं। चूँकि मेरे बाल सुनहरी और रंग रेड ब्लड सा होता था तो वो हंस के कहने लगी, वो लाल चुकंदर। चिन्योट की गलियों में चलते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा बचपन वापस आ गया हो। मेरे अंदर से एक अजीब सी खुशी फूट रही थी। यही तो वो जगह है जहां एक मेरे जैसा सैलानी मुसाफिर पूरा जिंदगी के तजर्बात के साथ अल्लाह की कुदरत के जलवे महसूस करता है। यकीन जानिए, ऐसी जगह मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत, उसकी वहदानियत और उसकी मुतलकुल अनानी को और मजबूत कर देता है, मेरे ईमान को और मजबूत बना देता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चिन्योट के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि अपनी वो पुरानी शक्ल ही खो चुका है और बिल्कुल नई शक्ल में मौजूद है। तो ये है चिन्योट का बड़ा मंदिर जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आया हूँ चिन्योट में। चिन्योट का बड़ा मंदिर, यानी कि हिंदुओं का कोई मंदिर है, वो देखने के लिए। लेकिन यहाँ आकर थोड़ी सी मुझे ये मायूसी हुई कि इस मंदिर को अब ये दिखाएं जी इधर, ये गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी प्राइमरी स्कूल लाहौरी गेट जदीद 1 का नाम दे दिया गया हुआ है। अंदर से मैं देखता हूँ कि इसकी हालत क्या है या क्या नहीं। फिलहाल ये बिल्कुल एक स्कूल की मानंद नजर आ रहा है। ये इसमें ये जी गवर्नमेंट का स्कूल है, ये ऑफिस बना हुआ है और ये मंदिर का अंदरूनी मंजर है। ये बेटा जी आए जरा, ये वाला फिल्म आए और इस पर एक हिंदी तहरीर लिखी हुई है। इसको फोकस करें जी, हिंदी तहरीर को, और 2 शेरों के निशान है और बीच में महात्मा बुद्ध का है। इसको जरा फोकस करें और इसके नीचे जो निशान बने हैं ये भी कुछ, वो देखिए दरमियान में फिर एक महात्मा बुद्ध की तस्वीर है। और ये मंदिर को अब नीचे से बिल्कुल एक स्कूल बना हुआ है और इसको सुर्ख रंग का पेंट कर दिया गया है, यानी कि इस पर सुर्ख रंग मल दिया गया है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि इस बड़े मंदिर को अगर आसार कदीमा इसी सूरत में रहने देती, जिस तरह की उमर हयात पैलेस है या फिर वो शाही मस्जिद है, तो देखने वालों को एक तस्कीन देता, या सयाहों को, मेरे जैसे आवारा गर्दों को ये देखने को मिलता जी। ये क्लासरूम से साथ ही ये राहदारी है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। इसकी खस्ता हाली मुंह बोल रही है। ये देखें, ये सारे कदीमा को चाहिए कि ऐसी जो हमारी नादर चीजें हैं उनको, उनका ख्याल रखें, उसको अपनी कस्टडी में लेकर तफरीह गाह बनाए। चिन्योट एक तारीखी शहर है, इसमें बहुत से ऐसे मकाम हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। ये अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं ऊपर का मंजर फिल्माऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से सीढ़ियाँ बहुत ही, ये सीढ़ियाँ बहुत तंग हैं। ऊपर मंजर के जो मीनार थे वो दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। ये जो एक हॉल है जो नीचे मैंने आपको दिखाया, और नीचे क्लासरूम से, और ऊपर इसके ये जंगले के साथ राहदारी है जो चारों तरफ घूमती है। ये यकीनन इबादत के लिए यहाँ भी बैठा जाता होगा और इबादत की जाती होगी। ये वो स्थान या मेंबर कह ले जहां पुरोहित बैठकर
पूजा पाठ करते हैं। ये चिन्योट शहर के अंदर की पहाड़ियां हैं, ये तो मैंने आज पहली बार देखी है। और ये छत से मंदिर का मंजर। चलिए इसकी खस्ताहाली के साथ साथ मैं इस मंदिर के मुतल्लिक भी आपको कुछ बता दूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस मंदिर का नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर और अब इसको बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और लक्ष्मी नारायण यानी कि देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण विष्णु का मंदिर। मंदिर की तामीर तकरीबन 1830 में की गई थी, यानी जब बड़े सगीर पाक हिंद सगे दौर थे, यानी इकट्ठा दौर था, उस वक्त इसकी की गई। और इसकी तामीर के हवाले से कहा जाता है कि इसे महाराजा गुलाब सिंह जम्मू ने तामीर करवाया था। ये वही गुलाब सिंह है जो कश्मीर का राजा था। और इसके हवाले से जो मुझे मालूमात मिली हैं कि ये है कि ये उस वक़्त ये मंदिर तामीर किया गया था और हिंदुओं की पूजा पाठ के लिए किया गया था। नीचे तो बिल्कुल इसके मंदिर की शक्ल ही बदल चुकी है, लेकिन ऊपर से देखें तो मंदिर का ढांचा क्लासिकल जो है हिंदू मंदिर तर्ज़ तामीर पर जो है ना वो मबनी है। खूबसूरत इसके नक्शो निगार और ये लकड़ी का थोड़ा बहुत जो काम अब रह गया है और पत्थर की तराश का इम्तजाज भी नज़र आता है। और एक कहा जाता है कि जो इसके ऊपर एक वो ये चाँद सा लगा हुआ है, ये कभी सोने का था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया और ये अब पीतल का है, जो कि अब वो भी अपनी हालत खो चुका है। अंदरूनी और बैरूनी हिस्से अब काफ़ी ख़राब हालत में हैं, ख़ास तौर पर लकड़ी के फ़र्श, नक्शो निगार और दीवारें। और ये मतलब पानी से ख़राब हुए हुए ये दीवारें नमी और तोड़ फोड़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुके हुए हैं। लेकिन इस मंदिर की हालत बताती है कि माजी में हिंदू माशरे का असर व मकाम कैसे था और वक्त गुजरने के साथ ये कैसे बदल गया। अब ये मंदिर हिंदुओं की इबादत गाह नहीं रहा, एक हिंदुओं का फ़ाल मंदिर नहीं रह गया, बल्कि ये एक तालीम का गहवारा बन चुका हुआ है। लेकिन ये मंदिर एक तारीख़ी इमारत के तौर पर जाना जाना चाहिए था। इसके बेशतर हिस्से बर्बाद हो चुके हैं। मंदिर की इमारत पर मुख्तलिफ़ किस्म की तोड़ फोड़ की गई हुई है, हिंदू नुमा अलामात मिटाई गई हुई हैं, मुजस्मे टूटे। और जैसा कि शुरू में मैंने दिखाया है कि 2 शेरों के मुजस्मे और दरमियान में एक महात्मा बुद्ध का आधा टूटा हुआ मुजस्मा है। और इसके जो है तज़ाइनी जितने भी तज़ाइनी अनासर हैं वो सब ज़ाया हो चुके हुए हैं। यहाँ का माहौल और देखभाल की कमी ने इस तारीख़ी मकाम की कदर कम कर दी है, जो कि सियाहती नुक्ते नज़र से बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। इस मंदिर की तारीख़ हमें ये बताती है कि एक शहर, एक मुआशरा, एक फ़न तामीर किस तरह वक़्त के साथ बदलता रहता है। चूँकि मैं एक बूढ़े मुसाफिर की तरह यहाँ इस मंदिर में घूम रहा हूँ, तो ये मंदिर ख़ास तौर पर एक लम्हे के लिए रुकने और सोचने का मौका देता है हमें, और ये मजबूर करता है कि हम सोचें कि ये मकाम आज कहाँ पहुँचा और कितनी खूबसूरती थी जिसे हमने खो दिया। बिल्कुल उसी तरह जब मैं अपनी उम्र के इस हिस्से पर खड़े होकर पीछे नज़र डालता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि क्या जवानी थी, क्या दिन थे, क्या खूबसूरती थी और क्या वो एक समा था। अगर पुरानी चीज़ों की हिफाजत ना की जाए तो वो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाली में होकर अपना चलिए। मकाम खो देती हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए। मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका नाम हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।